Today we will understand the difference between different kinds of provident funds. So we have CPF, GPF, NPS, EPF, VPF and PPF. Let us understand the differences. In India we have several kinds of provident funds. One of them is CPF. CPF stands for Contributory Provident Funds. This was given to the employees who were generally employed in government services in the era of independence, 1947. What happened? In 1962, government gave the option to convert CPF into GPF, Contributory Provident Fund, into General Provident Fund. Okay. Most of the employees have opted for GPF. The interest rate was 10 to 12% in CPF of the basic salary, and the interest was credited at the end of the year as applicable. Government used to decide what interest we have to give. Okay. GPF, General Corporate Provident Fund. GPF was a major breakthrough in the Government of India rules and regulations. It stands for General Provident Fund, and the basic rules are that it was exempt from tax. Okay, and at the retirement you get all the GPF balances along with the interest. You can also withdraw GPF, but the problem is that GPF is applicable only to the government employees. In the private sector you cannot opt for GPF, and the rate of interest goes higher generally. It is still generally higher than every other thing except for, I think, PPF. In 2004, government decided that GPF will be closed and all the officials who join government services after 2004 will get NPS, new pension scheme. Now this was a totally different scheme from GPF. The maturity proceeds were linked to share market. There is no concept of interest. If the market is high, you get more amount. If the market is low, you get less amount. Okay. This is applicable only for the government employees for the tier 1, and all other contributions are voluntary. You can opt it. The best benefit was 80 CCD 1B. You get extra 50,000 of tax rebate, but in the latest budget, our FM has actually discarded this benefit also. So NPS has one more benefit. Supposing the employee is getting 10,000, okay, the employer will also contribute 10,000. So basically every month you get double of the amount. Although you can withdraw it, the withdrawal rules are too difficult. जनरली गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि आप निकाल सकते हैं इमरजेंसी में, ये है वो है, कुछ कंडीशन बताई जाती हैं, लेकिन आप निकालने की कोशिश करिए तो आपको बहुत लॉस होता है इसमें निकालने में। इसके अलावा इसमें बहुत बड़ा लॉस जो अभी बजट में डाला गया है, अगर आपका एनपीएस एक साल में 7,50,000 से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्सेबल है। एग्जाम्पल 10 लाख आपके एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है 10 लाख, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ रहा है आपका 2.5 लाख, इस पे आपको आज ही टैक्स देना है। जनरली इतना टैक्स आपका स्लैब रेट आएगा 30%, आपको 2.5 लाख पे 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन जब आप निकालना चाहेंगे कि आपकी रिटायरमेंट हो रही है आज से सपोज 20 साल बाद, तो ये 10 लाख रुपए 20 साल बाद मिलने हैं आपको, जिस पे टैक्स आज दे रहे हैं आप। लिक्विडिटी का फैक्टर समझिए आप, एक तो टैक्स आपने आज दे दिया, ओके, उसके अलावा पैसे आपको 20 साल 25 साल बाद मिलेंगे जब रिटायरमेंट, प्लस उस वक्त शेयर मार्केट का कुछ नहीं पता, शेयर मार्केट भी एग्जिस्ट कर रही है ये भी नहीं जानते हो। तो अभी आप देखिए कोरोना में मार्केट कितनी डाउन गई, अगर इस वक्त कोई रिटायर हो रहा होगा तो उसकी प्रोसीड्स ऑलमोस्ट 30% डाउन जा चुकी होंगी। ओके, 30% वो पहले ही टैक्स दे चुका होगा, 30% ऑलमोस्ट डाउन जा चुकी है मार्केट, तो 60% तो उस बच्चे का पैसे चला गया, वैसे कितना लॉस है। तो एनपीएस में कुछ लूप्स हैं, इसलिए आप देखिएगा पॉलिटिशियंस ने अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया हुआ एनपीएस। अब जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं होते हैं, प्राइवेट जॉब वाले, उनके लिए एप्लीकेबल होता है ईपीएफ। जैसे गवर्नमेंट के लिए था जीपीएफ और एनपीएस, उसी तरह से प्राइवेट जॉब्स के लिए है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। इसको मैनेज करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बट है प्राइवेट जॉब्स के लिए, लेकिन इसको रेगुलेट जो है गवर्नमेंट ही करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है, इसका क्या होगा
जितना भी होगा एप्लीकेबल। उसके अलावा जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही एम्प्लॉयर का भी होता है। जैसे एनपीएस में होता है जितना हम दे रहे हैं उतना ही गवर्नमेंट दे रही है, सिमिलरली ईपीएफ भी जितना एम्प्लॉय का है उतना ही एम्प्लॉयर का, जनरली 12% रहता है ऑफ द बेसिक सैलरी इमोल्यूमेंट बेसिक। अब ईपीएफ में आप चाहें तो अपनी तरफ से खुद भी थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं और अमाउंट डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। मींस प्राइवेट जॉब वाले वीपीएफ आप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए नहीं है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल्स ये नहीं कर सकते आप। उसके अलावा इसमें 100% ऑफ द सैलरी, मींस अगर आप सैलरी पर्सन हैं तभी आप वीपीएफ ले सकते हैं। 100% ऑफ सैलरी आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मंथली कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अब आप मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब में नहीं है, बट आप सेविंग्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ कोई भी खुला सकता है, चाहे आप गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी नहीं। आप चाहें तो बैंक में जाएंगे, सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे, एक पीपीएफ एक सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, बट इसमें विड्रॉल नहीं होते हैं। ओके, ये आप बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इसमें कंडीशंस क्या होती हैं, एक तो 15 इयर्स के लिए खुलता है, ऐसा नहीं है कि आपने आज खुलवाया कल बंद करवा दिया 1-2 साल में, नहीं, 15 इयर्स। उसके अलावा 500 मिनिमम आपको इसमें कंट्रीब्यूशन हर साल देना है, मैक्सिमम 1.5 लाख, इससे ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। पीपीएफ का जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, इंटरेस्ट हाई जनरली हाई होता है। उसके अलावा अगर आपने सपोज 500 रुपये भी नहीं जमा कराया एक साल किसी भी वजह से, तो इस पर आपको पेनल्टी लग सकती है। सपोजिंग 15 साल हो गए और आप नहीं निकालना चाहते फिर, तो आपको 5 इयर्स का टाइम और मिलता है। 5 इयर्स तक अगर आप चाहें तो आप पैसे मत निकलवाइए।